everyone, this is Samriti Saklani and I am a NEET 2025 survivor and now a government medical college MBBS student. Wow! So yes, this is my first video and this is going to be all about my NEET journey and what all things you should do as a NEET aspirant to get a government medical college seat. So yes, we have proof of how many papers I have solved in whole of this journey, and this is just a bundle. I have at least 2 or 3 more bundles like these. So yes, the NEET 2025 exam was really traumatic. It's almost been 9 months, yet I cannot get over it because God, what paper was that? That was really... Okay, so let's not talk about it. Let's talk about the upcoming paper. I think that is in 2.5 months from now. So this video is going to be all about NEET and it is going to be divided into 3 parts. First one would be my journey, the things that I did in my journey. The second part would be the mistakes that I made and that you should not make. The third part would be what you should do when you have just 2.5 months left for NEET. What all should you do? What all papers you should solve? Where should you concentrate? And what are the materials that you should focus on? So yes, let's get down to the video without much ado. So yes, the first part of the video, that is my own NEET journey. So I had 2 drops थे मेरे 11th 12th में I did not take coaching, it was my personal decision. 12th के बाद I enrolled at Akash और वहाँ मैंने कोचिंग ली है अपनी. So first drop जो था मेरा, that was not very fruitful. The merit skyrocketed in NEET 2024. NEET 2025 में I scored decent marks and I am currently at the top government state medical college of Uttarakhand, the government Doon medical college. So हाँ, तो मेरी journey physics, biology and chemistry. My most favorite, physics, chemistry and then biology. I don't know what obsession I had with physics, but whenever I studied physics, it was really an energy booster for me. Most of the बच्चों के साथ क्या दिक्कत होती है, even my batchmates, बहुत सारे जो मेरे साथ कोचिंग में थे, they had this problem कि वो physics नहीं कर पाते थे. And the major problem about this is because they found it hard. Of course I found it hard too. पर इसके लिए क्या करें? I think जब से आप कोचिंग ज्वाइन करते हो, यू शुड मेक योर माइंड. एक दिमाग में एक चीज़ बनी होनी चाहिए रिगार्डिंग फिजिक्स कि जब आप उसे करने लगोगे एंड व्हेन यू विल एस इट, जब आप उसे करोगे कंटिन्यूसली लगे रहोगे, एक पॉइंट आएगा व्हेन यू फील दैट यू आर फार अहेड ऑफ ऑलरेडी सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ पीपल. क्योंकि बच्चे फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं और यही चीज़ मेरे लिए एक मेजर ड्राइविंग फोर्स था टू डू फिजिक्स. बिकॉज थोड़ा दिमाग में मेरे एक सबकॉन्शियस माइंड में चलता है कि आई हैव टू बी बेटर देन अदर्स. जिस सब्जेक्ट में लोग अच्छा नहीं कर रहे, आई हैव टू बी बेटर इन इट. सो फिज़िक्स मेरे लिए एक ऐसा सब्जेक्ट था जो, एक तो हमारी फैकल्टी एट आकाश वाज रियली वेरी गुड एट फिज़िक्स. और फिज़िक्स सर हमारे जो थे वो एकदम से हर क्वेश्चन सॉल्व करते थे, वो बहुत मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था. सो फिज़िक्स पढ़ने में फिज़िक्स के नोट्स वगैरह आई डोंट थिंक इतनी ज़रूरत होती है पढ़ने की. It's just all about practicing. न्यूमेरिकल लो, उसे करो, पढ़ो उसे समझो, ठीक है. जब टीचर पढ़ा रहा है उससे पूछो, बहुत सारे क्वेश्चन पूछो, बाद में पूछो, जाके डाउट क्लासेस में पूछो. कोचिंग लगाई किस लिए है, इसलिए लगाई है. सो ये करो, अपने दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करो कि फिज़िक्स करनी है तो करनी है, उसका कोई और चारा नहीं है. एंड आई थिंक जगह जगह से वीडियो देखने के बजाय कि तुमने इधर से यूट्यूब से वीडियो देखी, इधर से, आई नेवर प्रेफर्ड यूट्यूब वीडियोज़ फॉर स्पेशली फॉर फिज़िक्स. बायोलॉजी आई कैन से, बट फिज़िक्स के लिए नहीं, बहुत कम यूज़ करी. फिज़िक्स के लिए अपना सोर्स बनाओ बुक्स में भी न्यूमेरिकल्स. कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, न्यूमेरिकल देखो, उसमें देखो, उसके एग्जांपल्स देखो, उसमें देखो कैसे हुआ है, क्या हुआ है, लॉजिक क्या लगा है, कहाँ पर से क्या हो रहा है. डायनामिक्स बनाओ, अपने दिमाग में मोशंस बनाओ, कहाँ कब कैसे हो रहा है. बहुत अच्छा तरीका. फॉर्मूले पढ़ो, याद करो उन्हें, फॉर्मूलों को रट जाओ, याद करो. न्यूमेरिकल्स करते रहो. आई थिंक एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए फिज़िक्स के लिए जो तुमने छोड़ दिया हो. फिज़िक्स रोज़ करनी है. केमिस्ट्री आई थिंक एक वीक में आपको 3-4 बार पढ़नी चाहिए, मतलब 3-4 दिन केमिस्ट्री को देने चाहिए अगर
आपको बहुत ज़्यादा टाइम शॉर्टेज हो रहा है, फिजिक्स में सारा टाइम लग रहा है, जो मेरे साथ होता था, एटलीस्ट 3 से 4 या 4 से 5 दिन देने ही चाहिए, 2 दिन आई थिंक यू कैन लीव केमिस्ट्री। बायोलॉजी वॉज नॉट माई फोटे, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा रिविजन का टाइम नहीं दे पाती थी उसमें, पर आई थिंक बायोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यस, माई मिस्टेक, सबसे बड़ी मिस्टेक, आई डिड नॉट गिव इनफ टाइम टू बायोलॉजी। फिजिक्स में करती रही, उसका कोई और चारा ही नहीं। बायोलॉजी में दिक्कत ये थी कि बायोलॉजी जब मैं पढ़ती थी मुझे नींद आती थी। आई थिंक आई डिड नॉट डू इट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं और बहुत अच्छी बात है, पढ़नी भी चाहिए, पर मुझे बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती थी। कैफीन इट नेवर वर्क फॉर मी, आई रैन प्योरली ऑन एड्रेनलिन रश। सो यस, जो भी था बायोलॉजी के लिए, वो मेरी फ्रेंड्स से मैंने बात करी है, बहुत सारे फ्रेंड्स हु हैव स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स, आई थिंक 340 प्लस मार्क्स इवन इन सच पेपर। तो उनको उनके अकॉर्डिंग जो होता है बायोलॉजी का, जो हमारा नीट यूनिफाइड पेपर भी आया था वो हार्ड था, पर उसमें भी आई थिंक 95% ऑफ क्वेश्चंस वर एग्जैक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। तो मैं कहूँगी कि मैं आकाश में जो था वो मैं अपने टॉप बैचेस जो होते हैं, जो बच्चों के एग्ज़ाम के रिकॉर्ड से, जो उनके हमारे टेस्ट होते थे उसमें जिनके सबसे ज़्यादा टॉप मार्क्स आते थे, उस बैच में थी मैं। सो हमारे हम जो करते थे उनको सॉल्व, हमें पेपर्स मिलते थे स्पेशली डिज़ाइंड फॉर द स्टूडेंट्स हु वर टॉपर्स, उनको मिलते थे। सो उसमें जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे वो मैंने सॉल्व करे हैं, MCQs। आई थिंक बायोलॉजी को याद करने के लिए अगर आपको भी नींद आती है बायोलॉजी में, क्योंकि मैं अपने दोस्तों से बात कर, उन्होंने भी कहा था कुछ हमें नींद आती थी, पर वो क्या करते थे और मैंने क्या नहीं किया कि उन्होंने जो पेपर्स मिलते थे उसी के MCQ बार बार याद करते थे। और आई थिंक जब तुम 100, 150, 200 पेपर करोगे ना, तो तुम्हें इतने सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इतने सारे क्वेश्चंस कि तुम बोलोगे अरे यार ये तो सेम पेपर आ गया है नीट में। सो ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है ताकि तुम बायोलॉजी करो। एंड आई थिंक बायोलॉजी इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। तुमने अगर बायोलॉजी में कर दिया, अगर तुमने बायोलॉजी में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो फिर तुम्हारी पूरी रैंक जो होती है वो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है, जो कि हुआ है मेरे साथ। बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट अगेन। तो हाँ, ये सब हुआ है। एंड केमिस्ट्री आई थिंक इट इज़ प्रिटी ईजी। ठीक है, केमिस्ट्री में मिस्टेक आई मेड इज आई स्टार्टेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेरी लेट, पर फिर भी मेरा एक डिसेंट स्कोर रहा है केमिस्ट्री में। सो मैं इतना ज़्यादा उसको नहीं करती हूँ रिग्रेट, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर ली थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हल्के में नहीं लेना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। इस साल हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा आई है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ जस्ट लाइक बायो, उसको पढ़ना है, उसको रटना है, उसकी हर एक लाइन पढ़ जानी है। NCERT ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बात लिख के रख लो। फिजिकल केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल्स करो, न्यूमेरिकल्स आते हैं। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी हमारे चैप्टर्स आते थे, काइनेटिक्स वगैरह जो भी था, वो सारे चैप्टर्स को ऐसे कि उसके न्यूमेरिकल जो है वो आते हैं, उसकी थ्योरी आती है, ऑफकोर्स आती है, पर उसके बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और ईजी आते हैं, जो नीट में आते हैं, दैट आर रियली वेरी ईजी। तो वो करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मिस्टेक फर्स्ट ये है, बायोलॉजी को हल्के में नहीं लेना है। सेकंड, केमिस्ट्री में आपको और ज़्यादा टाइम देना है जितना आप दे रहे हो। आई नो कि फिजिक्स और बायोलॉजी में फंसे इंसान केमिस्ट्री को भूल जाता है, पर नहीं करना है ऐसा, केमिस्ट्री को भी देना है। मैंने लास्ट टाइम पे दे दिया था ध्यान, तो हम केमिस्ट्री वजह से बच गई। अगर मेरी केमिस्ट्री भी बेकार जाती लाइक बायो, तो मैं आज नहीं होती गवर्नमेंट कॉलेज में। Now, the third part, that is what you should do in the last 2.5 months. मैं बोलूँगी कि अब आपको सिर्फ पेपर सॉल्व करने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पेपर्स। ट्रस्ट मी ऑन दिस। पेपर्स बायोलॉजी के लिए MCQs करते रहो। जो तुम्हारा नीट के पहले जस्ट 2 या 3 हफ्ते होंगे ना, उसमें पूरी NCERT को, अगर तुम कर सकते हो 2 हफ्तों में, तो 2 हफ्तों में पूरी NCERT दोनों 11th 12th रट जाओ। फिजिकल केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल्स जो है वो MCQs पेपर से सॉल्व करो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री NCERT रटो लास्ट के 2 या 3 हफ्तों में। लास्ट के 2 हफ्तों में आपको ध्यान रखना है कि NCERT ज़रूर कवर होनी चाहिए ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑफ बायोलॉजी।
फिजिक्स के से कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि हमारा रोटेशनल मोशन, उससे भी कुछ कुछ थियोरेटिकल पार्ट आता है, कुछ कुछ ऐसी लाइंस जो आप उस टाइम पेपर्स में नहीं समझ पाओगे, लेकिन ऐसी लाइंस जो एनसीईआरटी ने लिखी है, आई डोंट नो व्हाई लिखी है, क्यों लिखी है, क्योंकि हमें खुद समझ में नहीं आती। 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को नहीं समझ में आएगी, नीट स्टैंडर्ड के बच्चे को नहीं समझ में आएगी, बट वो दे देते हैं एनसीईआरटी वाले, मतलब जो हमारा एनटीए वाले कभी कभी दे देते हैं। ईजी आती थी अभी तक, पिछले साल आई डोंट रिमेम्बर ऐसी कोई लाइन आई है, पर हमारे पेपर्स में जो इंटरनल्स होते थे उसमें आती थी। सो हमारे जो इंटेंसिव का बैच था उसमें तो बहुत ज़्यादा आती थी। इंटेंसिव जो हमारे टॉपर्स का बैच था उसमें तो इतने सारे पेपर होते थे, इतने सारे कि इतनी सारी लाइन्स आती थी, हमने कभी पढ़ी भी नहीं थी। तो जो जैसे रोटेशन मोशन या मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये सारे जो चैप्टर हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत सारी लाइन्स आती थी एनसीईआरटी की। सो इतना सब मैं नहीं बोलूँगी आपको करने के लिए लास्ट के 2 हफ्तों में, पर हमारा जो वो है, आपको मेजर ध्यान रखना है कि अब जो 2.5 महीने बचे हैं, एटलीस्ट आप थोड़ी जो, या तो आप पेपर सॉल्व करिए, उसमें आपको अगर मिल रहे हैं थियोरेटिकल लाइन्स उन्हें पढ़िए, वरना आप अगर कर सकते हैं तो एक बार फ्लूइड मैकेनिक्स, रोटेशनल मोशन, ये जो चैप्टर्स हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इनकी थोड़ी बहुत थ्योरी जो आपको इंपॉर्टेंट लग रही है वो पढ़ लीजिए। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपके बहुत बहुत अच्छे, मतलब आप चाहते हैं 180 आउट ऑफ 180 आ जाए, अगर पेपर का लेवल नीट 2024 जैसा रहा तो नीट 2025 में 180 आउट ऑफ 180 इज इम्पॉसिबल, कोई नहीं ला पाया, ऑफकोर्स इम्पॉसिबल, या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल से, देयर इज नेवर अ 0% प्रोबेबिलिटी। सो ये आप करेंगे। अब 2.5 महीने में आपको क्या करना है, एक मैप। सबसे पहले फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप हर एक चैप्टर वाइज उठाइए। पहले उनके इजी वाले न्यूमेरिकल जो आपको है कि आप इनसे फॉर्मूले जो हैं, उनके जो फॉर्मूलाज हैं उनसे आप अकस्टम्ड हो जाएं। ऐसे थोड़े इजी क्वेश्चंस उठाइए और उनको करिए। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट करने के लिए है ही नहीं, तो आप ये करेंगे। फिर आप जितने पेपर, जैसे कि मैं लास्ट के हमने लगभग 1.5 महीने में हमने हर रोज ऑलमोस्ट 2 पेपर दिए, एक इंटेंसिव का और एक नॉर्मल हमारी फाइनल टेस्ट सीरीज चलती थी वो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर दिन 2 पेपर, 2 नहीं तो एटलीस्ट 1 तो दीजिए, और लास्ट के 1 महीने में तो आपको रोज़ 2 पेपर देने ही देने चाहिए। तो आपके पास इतने पेपर्स हो जाएंगे, इतना मटेरियल हो जाएगा। आई थिंक मैं अभी भी इनको फेंक नहीं पाएगा क्योंकि ये मेरे बहुत क्लोज हैं हार्ट के। तो इतने सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे कि आपको हर चीज़ से आप वो हो जाएंगे, अकस्टम्ड हो जाएंगे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए यही करना है। केमिस्ट्री भी अगर आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का टाइम नहीं है, पेपर सॉल्व करिए, उसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइंस मिल जाएंगी। पेपर्स से अब लास्ट के टाइम में आप यूट्यूब की कोई भी वीडियोस देखने मत बैठिएगा कि आप लेक्चर देखने बैठ रहे हैं। आपको एक मैप मिल गया है किसी से, किसी भी सोर्स से, अब आप उसको अप्लाई करके आप चीज़ें अपने तरीके से उनको अप्लाई करके और अपना टाइम टेबल बनाइए, स्ट्रिक्ट टाइम टेबल। आप यूट्यूब लेक्चर वीडियो देखने का टाइम नहीं है, आप क्या देखेंगे? आपको सिर्फ अपने सोर्सेस और एक टेस्ट सीरीज लेनी है। अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो अब ले लीजिए कोई भी टेस्ट सीरीज। मेरे पे आकाश की स्टूडेंट थी तो मैं उससे करती थी, पर टेस्ट सीरीज लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पेपर सॉल्व नहीं करे, आपने कुछ नहीं करा नीट में, आप नीट के लिए कुछ नहीं प्रिपेयर्ड है, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता चलेगा, एंड देयर शुड बी एनवायरनमेंट। आप 3 घंटे के लिए लॉक हो जाइए, रूम में लॉक हो जाइए, स्टार्ट करिए पेपर देना, बिल्कुल शांत एनवायरनमेंट, देयर शुड बी नो हसल बसल, और पेपर सॉल्व करिए, अपने आप को एनालाइज करिए। एनालाइजिंग बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हर पेपर के बाद अपने आप को एनालाइज करती थी, जो क्वेश्चंस नहीं आते थे दोबारा करते जाइए। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी के लिए जो क्वेश्चन नहीं हुआ, रट्टा मारिए, उसको याद कर लीजिए। 2.5 मंथ्स में आपको यही करना है। आपको पेपर सॉल्व करने हैं, हर दिन 1 पेपर, 2 नहीं हुए तो 1 पेपर, वरना 2 इज द बेस्ट। दूसरा, कुछ चैप्टर्स अगर आपको नहीं याद है, बिल्कुल ही नहीं याद है, उनकी आप वीडियोस देख सकते हैं, 1 शॉट। आप 10 घंटे के लेक्चर उठा के मत बैठिएगा प्लीज़, ठीक है? ये आप कर सकते हैं। फिर और लास्ट के 2 हफ्तों में आई टोल्ड यू, बायो के एनसीईआरटी करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब आप करेंगे। फिजिक्स के लिए आपको करना ही करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल के बिना आपका काम नहीं चलेगा। जितने न्यूमेरिकल करेंगे उतने आप फायदे में होंगे। That is going to be the end of the video. I have told you all what I did in my journey. If you have any particular questions,
kindly drop comments, and if you like the video, share and subscribe.